بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ایس کے ناول میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جی تو چلتے ہیں، کہانی کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ناول کا نام ہے باسل، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ٹیکسی تنگ سی گلیوں میں ہوتی ہوئی اب ایک جگہ رک گئی تھی۔ پچھلے نشست کا دروازہ کھولے دوران بھویں اٹھائے ارد گرد بنے گھروں کو دیکھتا ہوا اترا۔ ٹیکسی سے نیچے اتر کر ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑی کاغذ کی چٹ پر ڈالی اور پھر سامنے لگے بورڈ پر یہی وہ ایڈریس تھا جو ہنا کے شوہر نے لکھوایا تھا۔ انل ٹیکسی کو کرایہ ادا کرنے کے بعد بالکل اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ دران نے ایک نگاہ انل پر ڈالی اور سر کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ سفید رنگ کے لکڑی کے بنے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سنگل ڈور گیٹ تھا۔ دران نے آہستگی سے گھنٹی پہ ہاتھ رکھا۔ ریزورٹ سے سیدھا وہ آگے نکل آئے تھے۔ پاکستان میں ہنا کے ماں باپ کے گھر سے بآسانی اس کے شوہر کا نمبر مل گیا تھا۔ وہ چونگکنگ کے ایک متوسط طبقے میں رہائش پذیر تھا۔ چونگکنگ کی فلائٹ پکڑ کر وہ تینوں کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہاں پہنچ گئے تھے۔ یہاں کے نمبر سے دران نے ہنا کے شوہر کو فون کیا اور خود کو کلائنٹ ظاہر کیا۔ اب وہ اس کے منہ مانگے دام پر وہ اس کی بیوی کے کلائنٹ بن کر اس کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ چونگکنگ پہنچتے ہی انہوں نے ایک ہوٹل میں رہائش لی جہاں وہ اب جوئی کو چھوڑ کر خود یہاں آئے تھے۔ تیسری گھنٹی پر ہی سفید دروازہ کھل گیا۔ بدبو کے بھپکے اڑاتا خبیث شخص غالباً ہنا کا چینی شوہر ہی تھا۔ ایڈوانس پیمنٹ فرسٹ۔ بڑے انداز میں اس نے پینٹ کی جیب سے پسٹل کی ہلکی سی جھلک دکھاتے ہوئے دران سے کہا۔ دران نے انل کو اشارہ کیا۔ انل نے فوراً کوٹ کی جیب سے پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ پیکٹ کو ہاتھ میں لے کر اس نے اچھالا اور پھر دروازے سے پیچھے ہوتے ہوئے دونوں کو راستہ دیا۔ آؤ۔ چھوٹی سی گیلری تھی جس میں وہ اس کے شخص کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کی پینٹ کی جیب میں سے پسٹل ابھی نظر آ رہا تھا۔ گیلری کے آگے لاؤنج اور سامنے دو بند دروازے تھے۔ بدبودار سا لاؤنج ایک عدد صوفے، میز اور سامنے بڑی اسکرین ٹی وی پر مشتمل تھا۔ کچھ پیو گے پہلے؟ لڑکی اور کمرہ تیار ہے۔ شخص نے مسکراتے ہوئے ایک طرف میز پر دھری شراب کی بوتلوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں پیوں گا، یہ اندر جائے گا، دران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہوا۔ اکٹھے نہیں جائے گا کیا؟ دران نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خباثت سے کہکا لگا گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کا مرضی، پر وقت کے حساب سے چارج ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ انگلش زبان میں بولتے ہوئے اس نے انگلی کھڑے کیے تنبیہ کیا۔ ہاں فکر نہ کرو، دران نے ہاتھ کھڑا کیے تسلی دی اور پھر انل کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرہ ہے سر، انجوائے۔ وہ انل کو ہاک مارنے کے بعد کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ انل نے گہری سانس باہر ڈیلی، ایک چور نگاہ دران کی نگاہوں سے ملائی اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پک میں خود لگاؤں گا۔ دران نے شراب کی بوتلوں کی طرف بڑھتے شخص کو روکا۔ وہ بتی سے نکالے کندھے اچکاتا ہوا پیچھے ہوا۔ پیگ۔ دران اب میز کی طرف جا رہا تھا۔ انل کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بے بس سی لڑکی کو چند ثانیے میں پہچان گیا۔ وہ انہی کی بلڈنگ میں کی لڑکی تھی۔ دل کے پھٹنے جیسا احساس ہوا۔ وہ نگاہیں جھکا ایک روبوٹک مانند بیٹھی تھی۔ میک اپ سے اٹا چہرہ، شرمناک لباس۔ انل نگاہیں چرا گیا، پھر وہ مشکل سر اوپر اٹھایا۔ ہنا، انل کی آواز پر وہ بری طرح چھٹپٹائی۔ ذرا سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انل کو دیکھتی ایک دم سے اٹھی، ہچکی سی بندھی اس کی چیخ برآمد ہوئی۔ شش، چپ چپ، آپ کو یہاں سے لینے ہی آئے ہیں۔ وہ سہم گئی۔ اس کی کیفیت بے یقینی جیسی تھی، کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی۔ انل لبوں پہ ہاتھ رکھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ انل کی طرح شاید وہ بھی اسے پہچان گئی تھی۔ روئے مت پلیز، چپ، اب بالکل سیف ہیں اب۔ انل نے ہنا کو خاموش رہنے کا کہتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ بنا کسی کھڑکی اور روشن دان کے اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک ہی مقصد کا ساز و سامان تھا۔ انل کے چپ کروانے کے باوجود سامنے کھڑی بے جان ہنا گھٹی گھٹی آواز میں روئے جا رہی تھی۔ قید اور وہ بھی اذیت بھری، اس میں کسی ذی روح کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ سامنے بیٹھی وہ لڑکی ہی جانتی تھی، پچھلے 6 ماہ سے وہ یہاں قید و بند میں تھی۔ ماں باپ نے تو یہی سوچ کر رخصت کیا تھا کہ نہ صرف اس کا مستقبل سنور جائے گا بلکہ پیچھے ان کے گھر کو بھی سہارا ملے گا۔ شادی کے جھانسے میں یہاں لا کر شوہر اس سے 6 ماہ سے جسم فروشی جیسا گھناؤنا کاروبار کروا رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کا منہ ہر ماہ چند ہزار بھیج کر بند کر دیتا تھا۔ وہ اپنی نگرانی میں ہنا کی بات گھر والوں سے کرواتا تھا، جس میں وہ یہ کہتی کہ وہ بہت خوش ہے اور یہاں ایک اسٹور میں ملازمت کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پیسے بھیج رہی ہے۔ سارا دن وہ اس چھوٹے سے فلیٹ نما گھر میں بند رہتی، شوہر کا جد کرتا، تشدد کرتا اور منہ مانگے داموں پر جسم فروشی کرواتا۔ وہ اب مایوس ہونے لگی تھی، خود کو حالات پر چھوڑ دیا تھا، لیکن آج یوں کوئی اسے بچانے کے لیے آ جائے گا یہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر، پلیز مجھے لے چلو یہاں سے۔ کانپتے ہاتھوں سے راہ فرار کی جھاپ پر کھڑی وہ اب بھی بے یقینی کے سامنے کھڑے انل سے منت سماجت کر رہی تھی۔ جائیں گی، ضرور جائیں گی، بلیو می، اب رونا بند کرے، آواز باہر جائے گی۔
अनिल ने तसल्ली आमेज लहजे में समझाया। तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के लिए अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया, निगाहों का ज़ाविया तब्दील किया और कमरे के बंद दरवाजे को बगौर देखा, जिसके पार छोटे से लाउंज में लगे सोफे पर हिना का शौहर बैठा था और दुर्रान हाथ में 2 गिलास थामे उसकी तरफ आ रहा था। गिलासों में मौजूद महलूल ऊपरी सतह पर सफ़ेद झाग की दबेस तय थी, जो दुर्रान के दग भरने से गिलास के किनारों से टकरा रही थी। बड़ी महारत से दुर्रान ने गिलास के अंदर मौजूद इस महलूल के अंदर बेहोशी की दवा मिलाई थी कि नकियों से वो सामने बैठे शख्स को देखता हुआ अब उसके करीब आ चुका था। वो बड़े मज़े से टांगे पसारे टीवी पर निगाहें जमाए हुए था। आपके लिए। दुर्रान ने भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर मज़ीन की, उसकी तरफ गिलास बढ़ाया। वो चौंका, हैरत से दुल्हन की तरफ देखा। भरपूर अदाकारी। ओह, अपना मैं खुद बना लेता, आपने तकलीफ की, पर अब कर दी है तो लाए दे। अकलाहट से भरे दांत निकाले पीलाहट से भरे दांत निकाले वो अब दुर्रान के हाथ से गिलास थाम रहा था। दुर्रान ने गिलास उसे पकड़ाया और खुद बाएं तरफ लगे कांच पर विराजमान हुआ। वो गिलास को लबों से लगाए शराब चढ़ा भी चुका था, जबकि दुर्रान हुनूस गिलास को एक हाथ में थामे बैठा था। निगाहें कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों को आगे सरकता हुआ देख रही थी। 30 मिनट बस। आपको देखकर लगता है ऐसे जैसे बहुत देखा हूँ कहीं। वो महलूल से भरे गिलास को लबों से हटाए आंखों को शनासाई अंदाज में चुंधिया किए दुर्रान की तरफ देख रहा था। दुर्रान ने आबरू उठाया। हाँ, एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस से बहुत शक्ल मिलती है मेरी। दुल्हन ने बड़े वसूख से झूठ बोला। वो जोर जोर से सर इस बात में लाने लगा। हाँ, याद आ गया, बिल्कुल, वो रॉक फाइटर का हीरो। वो सोफे के बाजू पर हाथ मारे अपनी जहानत पर इतराता हुआ कहकह लगा गया। दुर्रा ने मानी खेज मुस्कुराहट सजाए बस सर इस बात में लाने पर इत्तेफाक किया। वाकई बहुत शक्ल मिलती है तुम्हारी उससे। मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं मैं जैकी जैसा लगता हूँ। वो गर्दन उठाए शेखी बगार रहा था। अच्छा, यकीन करे, लोग सच कहते हैं, है ना? तुम्हें भी लगता है ना ऐसा? वो उंगली को हवा में झुलाते हुए तस्दीक मांग रहा था। खबासत से बत्ती सी निकाले हुए था। दुर्रान उसकी उंगली की धीमी होती रफ्तार को जांच रहा था। अब काम सेकंड्स पर था। अंदर वो तुम्हारा दोस्त है, किस काम के सिलसिले में आए हो? तो तुम लोग चाइना। दरवाजे की तरफ इशारा किए वो दुर्रान से अब अनिल के बारे में पूछ रहा था। उसको हिचकी लग रही थी, आंखें बंद हो रही थी, जिन्हें वो जबरदस्ती खोलने की नाकाम कोशिश में मुंह के जावे बिगाड़ रहा था। दुर्रान बड़े आराम से अपनी जगह से उठा, महलूल से भरा गिलास सामने मेज पर बड़ी हस्तीकी से रखा। वह बवास खो रहा था, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और आंखें बंद हो चुकी थी। दुरान करीब आया, पैंट की जेब में हाथ डाले उस पर झुका। तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने आए हैं। सियाह आसमान पर अनगिनत सितारों की झुरमुट में आखिरी तारीखों का बारीक सा चांद चमकता हुआ दुनिया में मौजूद बहुत से सियाह बख्त लोगों के दुखों से बेखबर था। कराची में घुटन ज़दा तंग गलियों में बने ताफन ज़दा ये घर, जिनकी हर सेम ज़दा भरभरी ईंट, अंदर रहते मकीनों की घुटी और तल्ख जिंदगी की गमाजी थी। 2 कमरों और एक छोटे से स्टोर नुमा कोठरी पर मुश्तमिल इस घर में रात के 11 बजे झिंगुरों की आवाज़ एक गुनगुनाहट की तरह गूंज रही थी। दोनों कमरों की बत्ती गुल थी, जबकि स्टोर में लगा बल्ब जल रहा था। स्टोर को भी कमरे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता था। दिसंबर की यख बस्ता सर्दी में जहां घर के तमाम मकीनों लिहाफों में दुबके सो रहे थे, वहां स्टोर में डाले बिस्तर एक तरफ बेखबर सोई मैरी की करवट के मुखालिफ सिमत वो सिमटी सी चोर निगाहों के साथ गोद में रखी किताब पर निगाहें दौड़ा रही थी। सियाह रंग के जोड़े पर मैरून शाल को कंधों के गिर्द लपेटे वो किताब पढ़ने में मोह थी। आमिना अब उसे अपने घर की लाइब्रेरी से इस्लामी किताबें लाकर देने लगी थी। रोशन किताबें, हक सच को बयान करती हुई किताबें, सीधा रास्ता दिखाती हुई किताबें, परत दर परत राजों पर से पर्दे उठाती किताबें, जिन्हें वो छुपाकर घर ले आती थी। सारी सारी रात वो उन किताबों को पढ़ने में गुजार देती थी। इस्लाम कामिल दीन है, सिर्फ जहन उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल में लगे कुफल भी खुलने लगे थे। वो सोचने लगी थी, फिर खोजने लगी थी, फिर मानने लगी थी। बस अब ईमान लाने की देर थी। दरवाज़ा खुलने की हल्की सी चचड़ाहट पर बड़ रफ्तारी से उसने किताब को लिहाफ में छुपाया, मुस्तरिब सा चेहरा ऊपर उठाया। जूही, जाग रही हो ना? सनाना सर अंदर किए पूछते हुए आगे बढ़ी। शाल कंधों पे लपेटे वो अंदर दाखिल हो चुकी। आ जाओ। तो तुम नहीं सोई अभी तक? रोशनी सो गई क्या? हल्की सी गड़बड़ाहट पर वो मुश्किल काबू पाए हुए थी। अमूमन इस वक्त सब सो जाते थे, मगर आज सनाना की बेटी रोशनी बीमार थी। कुछ देर पहले उसके रोने की आवाज़ें घर भर में गूंज रही थी। अब शायद वो सो चुकी थी। हाँ, सो गई है। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अब उसके बिस्तर के करीब आ रही थी। जूही की धड़कन तेज़ होने लगी, धक धक की आवाज़ उसके साथ गाल गर्म होने लगे। तुम भी सो जाती ना, थोड़ी नींद पूरी हो जाती।
कोशिश तो की मगर सर में बेपनाह दर्द था। चाय पीने को दिल था मगर तुम्हारे हाथ की हल्की सी मुस्कुराहट ने सनाना के खुश्क लबों के किनारों को फैला दिया। कितने अरसे बाद तो वो यूं मुस्काई थी। जूही ने नजर भरकर उसे देखा। पीला हटजदा थका चेहरा, आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के उसके हसीन चेहरे को पसमुर्दा किए हुए थे। दिल में एक ठेस उठी। 1 साल पहले कैसा खिलता हुआ चेहरा था उसका, चमकती आंखें, दमकती सुर की छलकाती रंगत। अभी बना देती हूँ, चलो साथ चलते हैं, किचन में इकट्ठे बनाते हैं। ये आपको बड़ी एहतियात से उठाती वो अपनी जगह से उठी। मुबादा सनाना की निगाह किताब पर न पड़ जाए, वो उससे पहले ही पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जूही ने सर को हल्का सा खम दिया, एक झांकती निगाह वापस लिहाफ पर डाली और उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। छोटा सा बोसीदा किचन भी मरियम ने बड़े सलीके से साफ रखा हुआ था। जूही अब बर्तनों की अलमारी में से एक हथेली निकाल रही थी और सनाना दूध की बोतल फ्रिज से निकालकर बाहर ला रही थी। जूही बोतल को उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमे मगर पुरसोच लहजे में पुकारा। एक कप पानी को कतीली पर चढ़ाते मगर अंदाज में हल्का सा हुनकारा भरा। रहबर रिश्ता भेज रहा है फिर से, खाला ने अम्मा को बताया है कि वो जल्दी आएंगी। सनाना निगाहें झुकाए हुए थी। जूही ने चौंक कर खुशी से देखा। वो उनकी खालाजाद था जिसका रिश्ता पहले सनाना का अच्छी जगह से रिश्ता आ जाने पर जान ने ठुकरा दिया था। रहबर सनाना को पसंद करता था। वो अच्छा सुलझा हुआ लड़का था लेकिन माली हालात अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से जॉन राजी नहीं हुआ था। ये तो बहुत खुशी की बात है ना। जूही के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई थी जबकि वो उदासी से सर झुकाए हुए थी। मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया, पहले जूही की शादी होगी तो ही मैं करूंगी, तब तक रोशनी भी बड़ी हो जाएगी। मेरे नसीब के इंतजार में खुद पर नसीब के दरवाजे क्यों बंद कर रही हो सनाना। रहबर अच्छा लड़का है जो तुम्हें यूं एक बच्ची के साथ भी कबूल कर रहा है। बहुत आहिस्तगी से सनाना के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। नसीब वो क्या होता है जूही? उसकी आंखें डबडबा गई। एक होप थी जो जूही के दिल में ठेस बनकर उठी और फिर कम होते हुए जैसे पूरे वजूद में घुल गई। पानी कतीली में पककर अब पत्ती किनारों से चिपकने लगी। जूही ने फौरन पकते पानी में दूध की बोतल उंडेली। सफ़ेद दूध स्याह होते पानी में घुलकर अपना रंग बदलने लगा। पहले मैं अक्सर ये सोचती थी कि काश कोई ऐसा बाजार हो जिससे खूबसूरत चेहरा खरीद लाऊं। खूबसूरत चेहरों के साथ शायद नसीब फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अब तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ, नहीं, नसीब खूबसूरत चेहरों से नहीं जुड़े होते। अब्बा को देखकर समझ आती है, नसीब तो दौलत से जुड़े होते हैं। खोया सा लहजा और आंखें खोलती चाय पर थी। चीनी के 2 चम्मच कतीली में उंडेलकर वो गुमसुम खड़ी सनाना की तरफ पलटी। वो मुस्कुराई थी, फीकी सी मुस्कुराहट। सनाना ने तड़प कर उसके चेहरे पर निगाह घुमाई। तुम बदसूरत नहीं हो जूही, क्यों ऐसा सोचती हो? तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, सियाह, बड़ी सी, घनी लंबी पलकें। तुम्हारे चेहरे का हर नक्श इतना मासूम और जाज़िबे नज़र है कि सनाना जल्दी जल्दी एक ही सांस में जूही को उसकी खूबसूरती से आशना कर रही थी। वो बेसाख्ता हंस दी। ना ख़त्म होने वाली हंसी, कंधे हिल रहे थे। सियाह किनारों वाले लबों के नीचे सफ़ेद तरतीब से तराशे दांत भी दिखने लगे। हंस की रोई हो? सच कह रही हूँ बिल्कुल। और तुम्हारे बाल लोग तो ऐसे कर्ल डालने को पता नहीं कितने पैसे लगा देते हैं। सनाना ने खफगी से घूरा। वो हंसते हुए चाय कपों में उंडेल रही थी और सर को हंसगी से नफ़ी में हिला रही थी। मैंने कब कहा कि तुम झूठ कह रही हो? तुम्हें मैं वाकई बहुत खूबसूरत लगती होंगी क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हें मुझसे मोहब्बत बहुत है। किसी और की नज़र से देखोगी तो नहीं लगूंगी। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए वो अब भी हंस रही थी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखना, एक दिन कोई शहजादा आएगा मेरी जूही के लिए, सनाना ने जोश से कहा। चाय का कप दोनों हाथ में थामे उसका मूड एकदम खुशगवार हो गया था। चाय के कप से उड़ती भाप उसके चेहरे तक उड़ रही थी। फिर से डाइजेस्ट पढ़ने लगी हो ना? मत पढ़ो, हकीकत बहुत तल्ख होती है इससे। जूही ने मसनूई शिकन डाले तनबिया किया। नहीं तो कहानियाँ हमें जीने के तरीके भी तो सिखाती हैं। हर कहानी रोमानवी और ख्यालों से परे तो नहीं होती। बहुत सी कहानियाँ सबक आमोज भी होती है। कहाँ क्या गलत है, क्या सही है, ये सब भी तो सिखाती हैं। अच्छा अम्मा, दादी, पढ़ लिया करो। चाय कैसी बनी है ये बता। कप के किनारे को लबों से लगाए भौवें उठाते हुए सवाल किया। हाय, बहुत बहुत कड़क। फ्लैट की बालकनी याद दिला दी। वो मुस्कुरा रही थी, आंखें बंद किए चाय की लिज्जत को अंदर उतारते हुए। वो वाकई बीते अच्छे दिनों की याद में खोई थी। मगर जूही को सिर्फ बालकनी याद नहीं आई थी, कोई और भी था जो सामने पार्क में सफ़ेद पत्थर के बेंच पर सर झुकाए बैठा था। होटल के इस नफीस कमरे में हिना की मध्यम जिस्कियों के साथ उसकी आंसुओं में रोंदी बासगश भी गूंज रही थी। ये चौकिंग
کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ تھا جس کے وسط میں ہنا جوئی کے گلے لگے ہوئے تھی۔ سیاہ گرم مکمل بند کوٹ میں ملبوس وہ شفاف آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس دن کی بنسبت بہت بہتر حالت میں تھی۔ جوئی گہرے نیلے رنگ کی جرسی کے نیچے پاؤں تک آتی گلابی اسکرٹ زیب تن کیے، بالوں کی سلیقے سے چوٹی بنائے پرسکون چہرے کے ساتھ گلے لگے ہنا کی کمر کو تسلی آمیز انداز میں سہلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا جوئی، میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھائی تم نے۔ شنگ جب بھی میری تمہارے گھر والوں سے بات کرواتا تھا تو وہ میرے سر پر کھڑا ہوتا تھا، جو وہ کہنے کے لیے کہتا تھا میں وہی کہتی تھی۔ ہنا کی شادی کے بعد اس کے والدین کے ذکر پر ہی جان اور مریم کو پتہ چلا تھا کہ کوئی ایسا چینی گروہ ہے جو عیسائی بچیوں سے وہاں کے لڑکوں کی شادی کرواتا ہے۔ ہنا کے والدین کے مطابق ہنا وہاں بہت خوش تھی، بس وہیں سے جان اور مریم کو لی تاؤ کا رشتہ ملا تھا جو اس وقت ان کی اشد ضرورت تھا۔ تفریح کے لیے 1-2 دفعہ ہنا سے بات ہو جانے کے بعد انہوں نے مزید لی تاؤ کو کوئی چھان بین نہیں کروائی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں پگلی، تم نے تو اپنی جان پر کھیل کر مجھے فون کیا تھا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جوئی نے آہستگی سے کہا۔ لمحے بھر کو چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر وہ مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ بھول جاؤ سب جو بھی ہوا، اب پاکستان جا رہی ہو تو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنا۔ ہنا کے شوہر شنگ کے بے ہوش ہوتے ہی دران اور انل اس کو وہاں باندھ کر ہنا کو بحفاظت وہاں سے نکال لائے تھے۔ ایسا کرنا بےحد ضروری تھا کیونکہ پولیس کو شنگ پورے ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد ہنا کو بحفاظت پولیس اسٹیشن پہنچایا جہاں اس نے شنگ کے خلاف بیان دیا اور چائنا پولیس کے فوری رد عمل پر بے ہوش شنگ کو اس کے گھر سے تمام ثبوتوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 2 دن کے اندر اندر صرف شنگ ہی گرفتار نہیں ہوا تھا، دران اور انل نے ہنا کی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کرتے ہوئے پاکستانی حکام کو جگایا جن کی توجہ اس گھناؤنے جرائم کی طرف آج تک گئی ہی نہیں تھی۔ 2 دن کے اندر اندر نہ صرف چائنا میں شنگ سے لے کر لی تاؤ جیسے ایسے چال باز تمام لڑکوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی بلکہ پاکستان میں ان جرائم میں ملبوس دھڑ دھڑ گروپ اب گرفتار ہو رہے تھے۔ بہت سی لڑکیاں ہنا کے ساتھ بازیاب کروا لی گئی تھی جن کی آج رات پاکستان روانگی تھی۔ جوئی کو اور خود کو دران ابھی بھی اس سارے معاملے میں مخفی رکھے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی اس ایکشن پر بلیک کیس مافیا بھی کچھ دیر کے لیے روح پوش ہو گیا ہوگا۔ اسے اسی دوران جوئی کو لے کر چائنا سے نکلنا تھا۔ اب کی بار دران نے سنوکر کے کھیل جیسا داؤ کھیلا تھا، اسٹریگر کو ایسی ضرب دی تھی کہ چاروں طرف بہت سی گیند نہ صرف نشانے پر آئی تھی بلکہ لڑکتے ہوئے چاروں خانوں کو چت کر دیا تھا۔ جوئی نے پاکستان میں سنانا اور رہبر سے بات کر لی تھی جنہیں وہ اپنے معاملے میں خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کر چکی تھی۔ دران اسے اس سارے معاملے میں بڑے انداز میں الگ کر رہا تھا۔ اس وقت ہنا واپسی کے لیے تیار تھی اور جوئی سے الوداعی طور پر گلے مل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جوئی اور ہنا نے ایک ساتھ دروازے کی طرف نظر گھمائی۔ دران کے پیچھے انل کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ دران ہنوز اپنے لاپرواہ سے حلیے میں جبکہ انل سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ وہ تو کھلے سے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مگن تھا جبکہ انل اب لب بھیجے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کی فلائٹ کا وقت ہے، پولیس نیچے انتظار کر رہی ہے۔ ہنا نے آہستگی سے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر سے جوئی کو اپنے ساتھ لگایا۔ اپنا خیال رکھنا جوئی، نم آنکھوں کے ساتھ محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم بھی۔ وہ پیچھے ہو کر آہستگی سے مسکرائی۔ ہنا ایک محبت بھری الوداع نگاہ اس پر ڈالتی پلٹی اور انل کے پیچھے سے باہر نکل گئی۔ وہ اب تک کمرے کے وسط میں اپنے موبائل پہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ جوئی کو پرپوز کرتی ویڈیوز نے پورے ہالی ووڈ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میڈیا والے اور فینس دران کے غائب ہونے پر بے چینی ظاہر کر رہے تھے۔ سب کو جاننا تھا کہ آخر وہ کون سی خوش قسمت لڑکی ہے جسے دران اپنی دلہن بنانے والا ہے۔ وہ اس سے کب ملا، کیسے ملا، کب محبت ہوئی اور کب شادی کرے گا۔ دران کی پرپوز کرنے والی ویڈیو نے ہاروی اور بروس کی ویڈیو کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ لوگوں کو بس اب دران کے میڈیا پر بیان کا انتظار تھا۔ وہ یوں ہی ٹراؤزر کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالے پیشانی پر افقی شکن ابھارے دائیں ہاتھ میں موجود موبائل اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا جب جوئی اپنے اور اس کے بیچ موجود چند قدم کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ جوئی نے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو آپس میں ملایا اور الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا۔ تھوک نگلا اور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے کلون کی مدھم سی مہک اتنی سی دوری پر دل کی دنیا کے اتھل پتھل کیے ہوئے تھی۔ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیسے شکریہ ادا کروں آپ کا۔ بہت ہلکی سی باز گشت تھی جس نے کمرے میں خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ مت کریں، رکھا سا مختصر جواب۔ وہ موبائل کو دیکھنے میں مہو تھا۔ ایک دم عجیب سی ندامت ہوئی۔ وہ بدتمیز تو شروع سے تھا۔ جوئی آنکھیں چھپکے اس بدتمیز کو دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے شکریہ مت ادا کرے، بس میرے لیے وہ کرے جو میں کہوں گا۔
सपाट लहजे में बिना तमीज बांधे अपना मकसद बताया, फिर निगाह उठाई। उफ! घायल कर देने वाली हेजल आंखें। जूही ने फौरन पलकें गिरा दी। क्या करना होगा मुझे? ये अदब सिर्फ उसके एहसानों के मरहूने मिन्नत नहीं था। सामने खड़ी लड़की के लिए वो कुछ और ही अहमियत रखता था। उसे जब भी ये महसूस होता तो अजीब सी चिढ़ होने लगती। फिलहाल तो पूरे एतमाद के साथ मीडिया पर इंटरव्यू देना है आपको। गहरी सांस लेते हुए जहन से जूही की सोच को झटका। वो अब फिर से पलके उठाए उसकी आंखों में देख रही थी। सियाह आंखों की पतलियों में बेपनाह एहतराम के साथ एक समंदर मौजन था जो दुर्रान से मख्फी नहीं रह सकता था। फौरन निगाहें चुराई, चेहरे पर सख्ती उदाई। कैसा इंटरव्यू देना होगा मुझे? वो सवाल कर रही थी, मीठी सी आवाज़ जिसकी फुहार उसके असाबों पर बरसने लगती थी। क्या थी वो और क्यों थी? लेकिन उसे नहीं चाहिए थी। वो ज़बरदस्ती घुस रही थी उसकी ज़िंदगी में, उसकी बहुत ही पर्सनल ज़िंदगी में, जहाँ आज तक वो किसी को मुकाम देने का तसव्वुर भी नहीं करता था। वहाँ वो एक सानी के तौर पर आ रही थी। बताऊँगा। तेज़ी से वो उसके पास से गुजरता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूही अब बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो चला गया था, लेकिन उसकी खुशबू यही हवा में अब तलक घुली थी। दोपहर के 1 बजे सूरज पूरी तमाज़त से चमकता हुआ कराची को न सिर्फ रोशन किए हुए था, बल्कि अपनी हिद्दत से हर चीज़ गर्म किए हुए था। मलिक हाउस में जहाँ चिड़िया लॉन में लगे दरख्त के तनों पर दुबकी बैठी अपनी आंखें मूंदे धीरे धीरे सांस ले रही थी, वहीं घर के मकीन अपने कमरों को ठंडा किए उसमें दुबके हुए थे। वक्त पर लगाकर गुजर चुका था। मलिक हाउस की दीवारों का रंग और रोगन 3 साल पुराना हो चुका था, जो फायका की निस्बत पर चमचम कर रहा था। सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मलिक हाउस के इस लाउंज से मलिका किचन की जालीदार खिड़की से छन छन कर वहाँ शेल्फ के करीब खिड़की खड़ी 2 शीशा के पुल से टकरा रही थी। गाजरी खिलते हुए रंग के जोड़े में दमकती रंगत लिए सबरीना हथेली की पुछते बार बार माथे पे आए पसीने के कतरे पोंछते हुए खाने को बड़े से टिफिन में डाल रही थी। रंग और रूप तो सोनिया और रूबी से भी बढ़कर निकला था, और अब 16 की हुई तो बला का गजब ढाने लगी। जहाँ जोबन में निखार आया, वहाँ जज्बात का समंदर भी रुख बदलने लगा। वो चंद साल पहले वाली सबरीना कहाँ रही थी, जो दुर्रान को राहिब की तरह फकत अपना बड़ा भाई समझती थी। दस्तगीर बेगम समेत बहुत से घर वालों की बातें कानों में पड़ते पड़ते उसको इस एहसास ने जकड़ लिया कि उसकी शादी दुर्रान से होगी, और जिससे शादी हो वो भाई तो नहीं होता। दुर्रान से अपनायत तो शुरू से ही थी। अब वो अपनायत, पसंदीगी और मोहब्बत जैसे जज्बे में ढल गई। ढलती भी क्यों ना, वो दुरान मलिक था। लंबा कद काट और जमाल में तो कोई पूरे खानदान में उसका सानी नहीं था। संजीदा मिजाज, कम गो, मजबूत और ज़हीन। वो तो ना चाहते हुए भी किसी भी लड़की के दिल को असीर कर सकता था। तो वो तो फिर 16 साल जवानी की सीढ़ी पर पहला कदम धरती लड़की थी। चाचू का खाना तैयार है तो दे दो। दुरान ने किचन के दरवाजे पे हाथ धरे अकब से आवाज़ आई। वो चौंकी और फिर मुस्कुराकर पलटी। सफ़ेद टी शर्ट, नीली जींस में मलबूस वो शायद अभी अस्पताल से आया था। जी तैयार है, बस टिफ़िन में रख रही थी। तेज़ी से टिफ़िन के ऊपरी ढक्कन को घुमाया। यावर मलिक के हार्ट अटैक ने घर भर को एक दफ़ा तो हिलाकर रख दिया था। अब भी वो अस्पताल में दाखिल थे, जहां उनकी मुकम्मल देखभाल की जिम्मेदारी दुर्रान पर थी। 19 साला दुर्रान घर और अस्पताल में घन चक्कर बन गया था। यावर से मोहब्बत इतनी थी कि इस सारे वक्त में उसके माथे पर एक शिकन नहीं आता था। अपनी पढ़ाई को पशपुस्त डाले वो दिन रात यावर की खिदमत में गुजारता था। अब भी वो दोपहर का खाना लेने घर आया था। असफंद की करम नवाजी थी कि कार आजकल उसे दे रखी थी, वरना तो इस तपती गर्मी में अस्पताल से घर के चक्कर बहुत कठिन हो जाते। सबरीना टिफिन मुकम्मल बंद करने के बाद पुष्प पर हाथ बांधे पीछे हुई, तो वो कार की चाबी को बाएं हाथ में मुंतकिल करता हुआ आगे बढ़ा। चेहरे पर थकावट थी, बाल बिखरे से और कपड़ों का हाल भी मलगत जैसा था। मुझे भी अस्पताल जाना है। दुर्रान ने टिफिन को किचन की शेल्फ से उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, जब सबरीना ने हंसते से अस्पताल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। दुर्रान ने झुकी निगाहें ऊपर उठाई। चलो, संजीदगी से कहा और फौरन पलटा। सबरीना जल्दी से कमरे के गिर्द बांधे दुपट्टे को खोलती उसके पीछे चल पड़ी। जानती थी वो उसका इंतजार नहीं करेगा। अगर वो ताखीर करेगी तो वो चला जाएगा, इसीलिए जिस हुलिये में भी थी फौरन दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त करती चल पड़ी। गाड़ी गेट से बाहर गली में ही खड़ी थी। वो टिफिन पिछली नश्त पे रख रहा था जब सबरीना तेजी से फ्रंट डोर खोलकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर विराजमान हुई। वो अब ड्राइविंग सीट संभाल रहा था। दुर्रान पर अचरती सी निगाह डाले वो धीमे से मुस्कुराई। दुर्रान के चेहरे पर बढ़ती सख्ती से बेनियाज वो बार बार उसे चोर निगाहों से देख रही थी। उसके साथ यूं गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठना उसके दिल को गुदगुदा रहा था। तो दुर्रान की कैफियत कैसी होगी? आखिर को वो भी तो जानता है कि मुस्तकबिल में हम किस रिश्ते में बंधने वाले हैं। शर्मा कर निगाहें झुका ली। दिल बार बार बात करने पर उकसाने लगा। वो खामोशी और संजीदगी का पैकर बना इन्माक से ड्राइविंग कर रहा था। सूरज की गर्मी के बाद माथे पर बार बार बल डाले शीशे से बाहर सड़क पर दौड़ती ट्रैफिक को घूरता वो उसकी बढ़ती धड़कनों से बेनियाज था।
दुर्रान वो गोद में धरे अपने हाथों पे निगाह जमाए झिझकती सी आवाज में सबरीना ने बात शुरू की, जब दुर्रान के सपाट लहजे पर चौंकी। दुर्रान भाई, इंतहा का सख्त लहजा था। वो जबड़े भिजे स्टीयरिंग पर गिरफ्त को बढ़ाते हुए बोला था। सबरीना के बदलते तेवर उसे मख्फी नहीं थे। बर्दाश्त तो बचपन से करना सीख चुका था और अब सबरीना को भी 3 साल से बर्दाश्त ही कर रहा था। दुर्रान भाई बोलती थी तुम मुझे, ये दुर्रान में कब से हो गया? पेशानी की तेवरी और चेहरे की सख्ती सबरीना का दिल बैठ गया। चेहरे पर एकदम से साया लहरा गया। निगाहें अब उसके बाजुओं पर मौजूद बालों पर टिकाई। जब से दादी ने रिश्ता तय किया हमारा, फूटी सी आवाज़ में जवाब दिया। दुर्रान ने गुस्से से लाल होता चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। सभी रिश्ता हमारा वही है जो हम दोनों ने बनाया था। मैं तुम्हें आज भी अपनी छोटी बहनों की तरह समझता हूँ। समझते हो? हूँ तो नहीं, बदजिस्ता जवाब था। वो आज दुर्रान से दो टोक बात के बाद उसके दिल का हाल जान लेना चाहती थी। इतने सालों से वो उसको देखकर दिल बहलाने वाला खेल अकेले ही खेल रही थी। आज उसके ख्यालात भी तो पता चले। सभी प्लीज़ तुम एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा मत करना। दुर्रान ने नागवारी से एक हाथ खड़े किए कहा। स्टीयरिंग पर अब एक हाथ के काबू में था। लहजा भला की बेजारियत और दृष्टि का गमाजी था। दुर्रान, मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी कल की मोहब्बत में और आज की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मोहब्बत बहुत एहतराम और सच्चाई रखती थी। अब तुम्हारे जहन में ये मोहब्बत ज़बरदस्ती डाली गई है। वो गुस्से से धारता हुआ अब स्टीयरिंग को मोड़ रहा था। गाड़ी के टायर मोड़ काटते हुए बुरी तरह चिरचिरा उठे। सबरीना को उससे इतने गुस्से में आ जाने की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। चाहे जैसे भी डाली गई हो, मगर अब हो गई है। बोलो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती? गर्दन को बुद्धि से थोड़ा पीछे के सवाल पर सवाल किया। भला का इत्मीनान था उसको अपनी खूबसूरती पर। दिल की धड़कन दुर्रान का जवाब सुनने को थम गई थी। नहीं। कठोरपन की इंतहा को छूता लहजा था। 1 सेकंड की तवक्कुफ भी नहीं की थी इसके जवाब में कि वही सोचती। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया है। मुझे वो सबरीना अच्छी लगती थी जो मुझे भाई कहती थी, ना कि ये सबरीना जो अब मेरे लिए और ही ख्यालात बुनने लगी है। दुर्रान उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किए हुए था। जबड़े इतनी सख्ती से बेबस थे कि उसकी कनपट्टी भरती रगे सबरीना की निगाहों से ओझल नहीं थी। कल अगर हमारी शादी हो जाती है तो? हमारी शादी नहीं होगी, न कल, न परसों, न कभी भी। गाड़ी एक झटके से अस्पताल की पार्किंग में रुकी। सबरीना जो सीट पर थोड़ा आगे खिसक कर बैठी थी, झटका खाकर सीट की फुस से टकराई। वो अब गाड़ी की चाबी निकाल रहा था। वो बात अपनी तरफ से ख़त्म कर चुका था। अपनी तरफ के दरवाजे के हत्थे पे हाथ रखे 1 सेकंड को रुका। उतरो, और आज के बाद इस टॉपिक पर हमारी कोई बात नहीं होगी। वो बाहर निकल चुका था। सबरीना ने उतरे चेहरे और बैठे दिल के साथ एक निगाह उस पर डाली, फिर निगाहें झुकाकर दरवाजे के हत्थे पे हाथ रख दिया। टिफिन को पिछली नशिस्त निकालकर वो कदम आगे बढ़ा चुका था। एक और रिश्ता उससे लिया गया था। वो अच्छे से जानता था सबरीना के जहन में उससे मोहब्बत और शादी का सारा खन्नास बनने वाली कोई और नहीं, सोनिया और रूबी थी। उसके चुप रहने को सब लोग उसकी हाँ क्यों समझने लगे थे। टिफिन के हैंडल पे हाथ की रगे उभरने लगी। वो अब सबरीना के साथ लिफ्ट में खड़ा था। जानता था वो आंसू पी रही है, लेकिन पहली दफ़ा वो उसके आंसू साफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। आंखों पर नरम बालों वाला सुनहरी ब्रश बड़ी महारत से हल्के हल्के स्ट्रोक लगा रहा था। जूही आंखें मूंदे चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाए हुए थी और उस पर झुकी लड़की बड़ी महारत से उसके श्रृंगार में मसरूफ थी। हल्के नारंगी और पीच रंग के इम्तिजाज की मैक्सी का गला और बाजू नेट के थे, जिन पर अनगिनत चमकते हल्के शरबती रंग के नगीने जुड़े थे, जो अपनी चमक से आंखों को खैरा कर देने की हद तक दिलकश लग रहे थे। कंधों तक आधे घुंघराले बाल सीधे होने पर कमर को छूने लगे थे। बालों के सीधा होने पर उनकी चमक में भी इजाफा हो गया था। लंबी घनी पलकों को मस्कारे ने और उठान दे दी थी। गंदमी रंगत पीच और नारंगी रंग के मिलाप वाली इस मैक्सी में खिल रही थी और मैक्सी की रंगत ही गालों पर झलक रही थी। होटल के इस दीदा ज़ेब कमरे में वो सिंगार में इसके सामने उस खोई हुई शहजादी की तरह बरजमान थी, जिसे जंगलों से तलाश करने के बाद अब लाकर उसका हार सिंगार किया जा रहा हो। भारी गमज़दा पलकें उठाए उसने आईने में अपने अक्स को देखा। किसी ने सच कहा था, कोई बदसूरत और कम शक्ल नहीं होता, बस गरीब होता है। चीनी लड़की उस पर झुकी मुख्तलिफ सिंगार ब्रश को कब से उसके चेहरे के मुख्तलिफ खदोखाल पर धीरे धीरे चला रही थी। वो मुड़ी और फिर पलटकर अपने बैग से कुछ निकालने के बाद अब उसके होठों पर बारीक ब्रश से हल्की पीच और नारंगी रंग के मिलाप की लिपस्टिक के स्ट्रोक लगा रही थी। चेहरे पर मैक्सी के गले पर लगे नगीनों का अक्स और लबों पर लगी चमकती मुलायम लिपस्टिक उसके सिंगार को दुबाला कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर जूही के साथ उस लड़की की निगाह भी कमरे के दरवाजे की तरफ उठी। आ सकते हैं, लड़की ने ऊंची आवाज़ में बाहर मौजूद नफ्स को अंदर आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और अनिल अंदर दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखे आधा अंदर दाखिल हुआ।
गहरे ग्रे रंग के कोट पहने वो मामूल के मुताबिक चाको चौबंद था। मैम रेडी नहीं हुई क्या? मीडिया वाले वेट कर रहे हैं। सवाल करते हुए अनिल ने सरसरी निगाह जूही पर डाली और दरवाजे के हत्थे पे हाथ की गिरफ्त बेसाख्ता ढीली पड़ गई। बस चंद मिनट और दरकार हैं सर, ज्वेलरी पहनानी है मैम को। लड़की ने शाइस्तगी से सिंगार मेज पर बड़े नफीस से नेकलेस की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अनिल उसकी तरफ मुतवज्जा कहाँ था, वो तो शीशेदार सामने बैठी जूही को देख रहा था। सर बस चंद मिनट, मुझे फाइनल टच देना है मैम को। लड़की ने अनिल के खड़े रहने पर थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर से गुजारिश की। वो सटपटाकर निगाहों का जाविया बदले अब लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। सर बस चंद मिनट। ठीक है, कोई मसला नहीं। अनिल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर टाई की नॉट को बिला वजह दुरुस्त किया और एहतियात से कमरे के दरवाज़ा बंद करता उल्टे कदमों पीछे हुआ, वापस मुड़ा और बिल्कुल सामने वाले दरवाजे को खोलता अंदर दाखिल हुआ। निगाह सामने दुल्हन पर पड़ी। स्याह शर्ट और स्याह एक पैंट कोट में मलबूस। कोट का सामने का एक बटन लगाए वो सर को झुकाए अब कफलिंग लगा रहा था। बालों को अपनी तरफ से तो बड़े सलीके से एक तरफ कंघी किया था, लेकिन वो फिर भी हल्के से बिखर कर पेशानी पे आने की गुस्ताखी किए हुए थे। हाँ बोलो, जूही रेडी है? कफलिंग लगाते हुए सर झुकाए मगन से अंदाज में अनिल से पूछा। तुमसे पूछ रहा हूँ, रेडी है क्या वो? अनिल के जवाब ना देने पर दुर्रा ने ना सिर्फ फिर से सवाल किया बल्कि चेहरा ऊपर उठाए उसकी तरफ सवालिया देखा। शी इज़ यूनिक ब्यूटी। हैरतज़दा लहजा दुरान बेसाख्ता पूरा मुंह खोलकर हंसा। अच्छा तो फिर तो असल वाला प्रपोज कर देना उसको। मैंने तो फेक प्रपोज किया है। हंसी को मुस्कुराहट में बदलते हुए शरारत से कहा। शट अप यार, मैं इस बात पर नहीं कह रहा हूँ। वो 3 दिन से ऐसे सादे से उलिये में थी, आज बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मतलब बहुत डिफरेंट। अनिल ने खजालत से सर हवा में मारते हुए अपनी बेसाख्ता कर देने वाली तारीफ की वजाहत दी। पर मैं संजीदा हूँ, वो वाकई अच्छी लड़की है, नो डाउट खूबसूरत है, तुम्हें सोचना चाहिए। दुर्रान ने सोफे पर बैठते हुए जूते अपने करीब किए। लहजा वाकई हद दर्जा संजीदा था और कुछ देर पहले वाली शरीर मुस्कुराहट अब गायब थी। ऐसी नज़र से अच्छी लगने की बात नहीं की मैंने, और जिस दिन तुम सोचने लगोगे अपनी शादी के बारे में भी सोच लूँगा। दुर्रान ने हंसते हुए निगाह ऊपर उठाई। सियाह बंद जूते अब पाँव में थे। मेरे पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे अभी बहुत से सवालों के जवाब तलाश करने हैं। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मुतवाज़न लहजे में जवाब दिया। मध्यम से मुस्कुराहट सजाए खड़ा हुआ, कोट के शिकन दुरुस्त करते हुए चंद कदम आगे बढ़ा। झुकने से बाल मजीद बिखरे थे। जिस दिन तू शादी करेगा उसके अगले दिन ही मैं भी ऐलान कर दूंगा। अनिल ने वसुक से अपना इरादा बताया। दुर्रान का खफीफ सा कहका फिर से बुलंद हुआ। वो अब कलाई पे घड़ी बांध रहा था। एक वही तो था जिसकी बातों पर वो हंसने पर मजबूर हो जाता था। तो मैं तो करने जा रहा हूँ ना। हंसी दबाते हुए एक शरीर निगाह अनिल पर डाली। ये फेक शादी है, जिस दिन असल वाली करोगे मैं भी कर लूँगा। अनिल ने तुर्के ब तुर्की जवाब दिया। मतलब तो तू नहीं सुधरेगा, मेरे सर पर ऐसे ही मुसल्लत रहेगा। पैंट की दोनों तरफ की जेबों में हाथ डाल ले कहा। अनिल ने लब भींचे और सर इस बात में हिलाया और दुरान के बढ़ते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अनिल के दरवाज़ा खोलते ही वो जो महू सा आगे बढ़ रहा था ठिठक कर रुका। वो सामने खड़ी थी, किसी बुत तराश का हसीन शाहकार बनी मुजस्सम। हंसी पेकर या फिर दिलकशी का मुनफरिद सा समा भी कह सकते हैं। अनिल की बात जहन में गूंजी और तस्दीक की मुहर फौरन लगाई। वाकई वो बहुत मुनफरिद और दिलकश लग रही थी। अनिल ने शरारत से मुस्कुराहट दबाकर दुल्हन की तरफ देखा। दुल्हन ने 1 सेकंड के 12वें हिस्से में अपनी इस खालिस मर्दाना कैफियत से खलासी पाते हुए जूही की तरफ उठी निगाहों को मुतवाज़न किया। मिस जूही, इस होक बने चेहरे के साथ काम नहीं चलेगा, मुस्कुराएं प्लीज़। दुल्हन का सपाट लहजा कुछ देर पहले उसके सिंगार पर उमड़ आने वाली हैरत से बिल्कुल बरक्स था। जूही ने गड़बड़ाकर पलकें झपकाई, चेहरा ऊपर उठाया। सामने खड़े शख्स के सामने आते ही उसकी रही से ही हिम्मत भी जवाब देती थी। वो ऐसी तो ना थी जैसी उसके सामने बन जाती थी। दिन रात मेहनत करके पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने वाली मजबूत आसाब की लड़की इस चट्टान जैसे शख्स के सामने छुई मुई हो जाती थी। लबों के करीब ठहरे चेहरे के पट्टे ज़बरदस्ती खींचकर वो उसके हुक्म पर आहिस्तगी से मुस्कुराई। हल्के पीच रंग के मजीन होठ मुस्कुराए तो वो जो तेवरी चढ़ाए बड़े रूप से उसे हुक्म सादिर किए खड़ा था। एकदम से माथे के शिकन ढीले पड़ गए। आंखों की चमक से मेल खाती कितनी मुलायम और मीठी सी मुस्कान थी जिसने उसके चेहरे के नक्श नक्श को उभार दिया। कुछ लोगों की मुस्कुराहट कितनी दिलकश होती है। उनकी मुस्कुराहट उसकी तरह सिर्फ लोगों का घेराव नहीं करती बल्कि चेहरे के हर कदो खाल से झलकती थी। वो जब मुस्कुराता तो सिर्फ लब मुस्कुराते थे, आंखें उनका साथ कभी नहीं देती थी। लेकिन सामने खड़ी लड़की की मुस्कुराहट कितनी जानदार थी। वो मुस्कुराई तो यूँ लगा उसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी, उसके वजूद का पोर पोर मुस्कुरा उठा।
اب ٹھیک ہے؟ وہ آہستگی سے کہتے ہوئے تصدیق چاہ رہی تھی۔ دوران نے خجل ہو کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ بے رخی سے انکار بھرا، پھر تیزی سے انل کی طرف پلٹا۔ چلو پھر تم آگے۔ سر کو ہلکا سا خم دیا، انل تیزی سے سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ ان لوگوں کو نیچے جانا تھا جہاں ہوٹل کے ہال میں ان گنت صحافی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لفٹ سے اتر کر ہال کے بڑے سے سیاہ رنگ دروازے کے سامنے وہ چند منٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ دوران انل کو کچھ ہدایت دے کر پلٹا اور ایک دم سے جوہی اور اپنے بیچ کا فاصلہ ختم کرتے ہوئے پاس آ کر اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا۔ وہ جوہی سب کے سامنے جانے پر اعتماد کھو رہی تھی۔ دوران کی اس جسارت پر سب بھول کر سمٹ گئی۔ کمر اس کے مضبوط بازو کے حصار میں تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو ریڑھ کی ہڈی میں میٹھی سی سنسناہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ بے اختیار دوران کی قربت سے بھاری ہوتی نگاہیں اس کے چہرے کے طرف اٹھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس، دلکش نقوش اور گہری ڈوب جانے والی آنکھوں والا اس کو پاگل کیے خود بے نیازی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انل نے ہاتھ بڑھا کر ہال کا دروازہ کھولا۔ ہال کا دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھے سرخ قالین والے اسٹیج پر تھے۔ یہ ایک آڈیٹوریم جیسا ہال تھا جہاں اسٹیج کے سامنے لگی نشستوں پر ان گنت صحافی بیٹھے تھے جو اب ہڑبڑا کر نشستوں سے اٹھ کر اپنے کیمرے آن کر رہے تھے اور مائک سنبھال رہے تھے۔ دوران یوں ہی متوازن قدم اٹھاتا اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے پہلے اس نے یوں میڈیا پر بیان کا کہا تھا، پھر بھی ان گنت صحافی اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ کانفرنس اس نے مکمل سیکیورٹی کے اندر منعقد کروائی تھی۔ چھپاک چھپاک کی آواز سے کیمروں کی فلیش لائٹ ان کی ہر جنبش کو قید کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دوران کے ہر قدم ریشمی لچکدار پاؤں تک آتے گاؤن نما فراک کو سنبھالتی وہ اس کے ہمراہ اسٹیج پر لگی نشستوں کے قریب آ گئی تھی۔ مبارکباد کی آوازیں، بے ہنگم سا شور۔ جوہی ستائشی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا تھا؟ اسے کل رات پتہ چلا تھا جب دوران نے اسے سب سمجھایا تھا۔ وہ یہ سب کس لیے کر رہا تھا؟ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ہالی ووڈ جیسی بڑی فلم انڈسٹری کا مایہ ناز سپر اسٹار تھا۔ دوران اب ہاتھ کے اشارے سے جوہی کو اسٹیج پر لگی نشست پہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ خود وہ برابر میں لگی نشست پہ بیٹھ چکا تھا۔ تیسری نشست پر دوران کے ساتھ انل بیٹھ گیا تھا۔ نشستوں کے سامنے لگے میز پر ان گنت مائک لگے تھے۔ وہ اب کتنے ہی کیمروں کی زد میں تھے۔ جوہی مدھم سے مسکراہٹ کو دوران کی تاکید پر بمشکل چہرے پر برقرار رکھے ہوئے تھی جبکہ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دوران اب سامنے موجود صحافیوں میں سے کسی ایک کو سوال کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے سوالوں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دوران سر، یہ تو بم بلاسٹ کر دیا آپ نے، مطلب اچانک سے مدعا کو حیران کر دیا۔ فین حیرت زدہ ہیں۔ اس سب کو لے کر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ صحافی بتی سے نکالے انگریزی زبان میں سوال کر رہا تھا۔ دوران نے سنجیدگی سے بھویں اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، آہستگی سے پیشانی سہلائی۔ یہ بم بلاسٹ میں یوں پبلکلی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی ذاتی زندگی کو اس چکا چوند سے الگ رکھنے کا قائل ہوں، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ مجھے جوہی کو یوں پرپوز کرنا پڑا اور ویڈیو پبلک کرنی پڑی۔ ٹھہرے سے لہجے میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے جواب دیا، پھر اگلے صحافی کی طرف اشارہ کیا۔ صحافی نے فوراً ہاتھ نیچے کیا اور پرجوش انداز میں مائک میں بولا، سر، مداح اور پوری انڈسٹری یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ جوہی میم سے آپ کب، کہاں اور کیسے ملے تھے؟ پیار کب ہوا آپ کو؟ آپ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ 7 سال پہلے، کیا وہ سچ ہے؟ دوران جو اس کے بولنے پہ دھیرے دھیرے سر ہلا رہا تھا، سوال ختم ہونے پر 1 سیکنڈ کا توقف لیا۔ جیسے کہ میں پہلے سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں، میں اپنے ذاتی معاملات کو اس سب سے الگ رکھنے کا قائل ہوں۔ تو جوہی سے میں کب، کہاں اور کیسے ملا تھا، یہ سب میری نجی زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں جن کو میں کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا۔ ہنوز روپ اور سنجیدگی سے 2 ٹوک جواب دیا اور تیوری چڑھائے کوٹ کے بٹن کو کھولا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور اگلے صحافی کی طرف اشارہ کیا۔ دوران سر، جوہی پاکستانی ہے تو یہاں کیسے ملی آپ کو؟ کیا یہ اچانک ملاقات تھی یا پھر آپ نے مل کر کیا سب؟ بالکل اچانک تھی۔ دراصل جوہی یہاں اپنی شادی کے بعد آئی تھی لیکن قسمت ہمیں ملانا چاہتی تھی۔ ان کی اپنے شوہر سے نہ بننے پر ڈیورس ہو چکی تھی اور اب پاکستان واپسی تھی، بس اچانک میں ملا اور پھر روک لیا۔ بھرپور اعتماد سے وہ جھوٹی کہانی سنا رہا تھا۔ مسکرا کر جوہی کی طرف دیکھا جو اس بات میں سر ہلا کر شرما گئی۔ وہ حیران تھی۔ صحافی تقریباً اسی طرز کے سوالات کر رہے تھے جن کی لسٹ وہ کل رات اسے دے رہا تھا۔ سر، آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ جوہی میم کو پبلکلی پرپوز کرنا آپ کی مجبوری بن گیا تھا، کیا ہم جان سکتے ہیں ایسی کیا مجبوری تھی؟ دوران جو لبوں پر 3 انگلیاں دھر کر آنکھیں چندھی کیے بیٹھا تھا، آہستگی سے انگلیاں لبوں پر سے اٹھائی۔ میں نے 7 سال بعد اس کے یوں اچانک ملنے پر یہ ریئلائز کیا کہ اب چپ رہ کر اسے نہیں کھونا ہے۔
वो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर चुकी थी और मेरे पास उसे प्रपोज करने का इससे अच्छा मौका नहीं था। लेकिन मैं उसे यूं प्रपोज नहीं करता अगर मेरे चंद शरारती कोलीग उसकी और मेरी वीडियो खुफिया बनाकर लीक ना करते। इस वीडियो को देखकर मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने सच्चाई रख देनी चाहिए कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। दुरान ने मुस्कुराकर कहा और साथ बैठी जूही के हाथ को पकड़ते हुए उसकी और अपनी उंगली को आपस में फंसाया। अब वो जूही की आंखों में देखकर बोल रहा था, दुरांग अगर किसी लड़की को गले लगा रहा है तो सिर्फ उसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाने जा रहा है। कमाल की अदाकारी थी। लम्हा भर को तो जूही का दिल धड़कना भूल गया। वो मोहब्बत से उसकी आंखों में न सिर्फ झांक रहा था बल्कि उसके हाथ पर भी गिरफ्त को मजबूत कर रहा था। तो शादी कब कर रहे हैं सर? दुरान ने गहरी सांस ली, लब भींचे, चेहरा दूसरी तरफ मुड़ा। बहुत जल्द, बड़े बसूख से जवाब दिया। कुछ था जो दुरान के हाथ से होता हुआ उसके दिल में सरायत कर रहा था। सर मेरा सवाल मैम से है। जूही मैम, आपको इतने सालों के बाद ये दुरांग सर का मिल जाना कैसा लगा? कुछ शेयर करें हमारे साथ। सहाफ़ी के सवाल पर वो हल्का सा लर्जी, मगर दुरान के हाथ पर बढ़ते दबाव ने एतमाद दिया। गले से नीचे सीने में जैसे एक फांस से अटकी। फिर वो मुस्कुराई और हंसदगी से लब खोले। बेयकीनी, मैं अभी तक इसी कैफियत में हूँ। बेयकीनी है कि हम इतने सालों बाद यूँ मिले। सुरीली सी आवाज़ ने जैसे जलतरंग बजाए थे। दुरान ने हाथ को दबाकर एहसास दिलाया कि ठीक बोल गई हो। जी मैम, आपके साहब का शौहर? सहाफ़ी ने हाथ खड़ा किए सवाल की शुरुआत की। प्लीज़ नो मोर पर्सनल क्वेश्चन। दुरान के सपाट लहजे ने उसकी बात काट दी। टांग से टांग उतारी और सामने मेज़ पर लगे माइक में से एक माइक को उतारकर हाथ में लिया। मुझे चाइना हकाम से अपने और जूही के लिए सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि इसका साहब का शौहर खुफिया तौर पर हमें मुसलसल थर्ट कर रहा है। दुरान ने बड़ी संजीदगी से पेशानी पर बल डाले अगली कहानी घड़ी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चाइना में रखने का असल मकसद भी यही था। जूही उससे हर तरह का ताल्लुक ख़त्म कर चुकी है और ऐसा वो मुझसे मिलने से कब्ल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका शौहर उसे धमका रहा है। मेरी अपील है कि हमें चाइना में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए और बहिफाजत अमेरिका पहुँचाया जाए। दुर्रान ने अपनी बात मुकम्मल की और माइक को मेज़ पर रखे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सहाफ़ी एक साथ बोल उठे थे। दुर्रान ने हाथ हवा में उठाया। नो मोर क्वेश्चन प्लीज़। जूही का हाथ थामकर उसे नशीब से उठाया और सहाफ़ियों को बोलता हुआ छोड़कर स्टेज के दरवाजे से होता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने जूही के हाथ को ऐसे छोड़ा जैसे वो फिल्म के सीन फिल्माने के बाद अदाकारा को छोड़ता था। वह पैंट की जेबों में हाथ डाले अनिल से अगले लाहिला अमल के बारे में संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था, जबकि जूही यूं ही दम साधे उसे देख रही थी। वो सिर्फ अदाकारी कर रहा है जूही, खुद को संभाल। वो कहाँ है और तू कहाँ? दिल बैठ रहा था। जूही ने गहरी सांस ली। अनिल ने अब उसे चलने का इशारा किया, जबकि वो मोहतरम जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए थे अब बेनियाजी से सिगरेट के कश लगा रहे थे। जूही ने अनिल के पीछे कदम बढ़ा दिए जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। इन्हें इसी वक्त होटल को छोड़ना था जिसकी मुकम्मल तैयारी वो पहले ही कर चुके थे। बस जूही को लिबास तब्दील करना था। तेज़ बारिश और बादलों की गरज चमक के साथ कराची पल भर में जलथल हो गया था। मगरिब के बाद के फैलते अंधेरे में रिक्शा सुस्त रवि से मेन सड़क से होता हुआ तंग गलियों में जा रहा था। रिक्शे की हेडलाइट से सामने सड़क पर खड़े पानी पर रोशनी पड़ रही थी। रिक्शे की दोनों तरफ की बंद खिड़कियों के बावजूद तेज़ बारिश के थपेड़े दोनों अतराफ से रिक्शे में बारिश दाखिल करने का मौजब बन रहे थे। जूही सिमट कर रिक्शे की सीट के दरमियान बैठी थी। वो अपनी आखिरी ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर वापस आ रही थी। रिक्शा हमेशा की तरह उनकी तंग गली के सामने आकर रुका था। यहाँ से उसे पैदल अपने घर तक जाना था। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते वो मुकम्मल भीग चुकी थी। बार बार चेहरे पर से पानी साफ करती वह मुश्किल सामने मंजर को देख पा रही थी। तंग सी गली मुकम्मल तौर पर पानी से भर रही थी। मुश्किल वो घर के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा बजाने को हाथ उठाया, बिजली चमकी तो रोशनी खुले दरवाजे से सहन तक को रोशन कर गई थी। दिल अजीब तर्ज में धड़का। भला सहन का दरवाज़ा क्यों खुला है आज? तेज़ तेज़ कदमों से घर के अंदर दाखिल हुई। गुप अंधेरे में डूबा घर और टूटी फूटी ईंटों वाले फर्श के सहन से आगे मौजूद कमरे में जलती मोमबत्ती की मलगजी सी रोशनी जाहिर हुई। जैसे जैसे सहन से आगे बने छोटे से बरामदे तक पहुंची, कमरे से भरती रोने की आवाज़ों ने रोंगटे खड़े कर दिए। ओ खुदा रहम! ना जाने क्यों जहन में पहला ख्याल जॉन का आया। ख्याल आते ही वो तकरीबन भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। जॉन की तबीयत कुछ दिन से बहुत ज़्यादा नासाज रहने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही जैसे दिल दहल गया। सामने का मंजर था ही कुछ ऐसा। जॉन चारपाई पर बेहाल लेटा छत की तरफ साकिन निगाहें उठाए हुए था। मरियम कुर्सी पर निढाल बैठी आंसू बहा रही थी। सनाना उनके कंधे के पास खड़ी उनसे कुछ कह रही थी। वो सबको नज़रअंदाज करती बल्क रफ्तार से जॉन की चारपाई तक पहुंची। ऐसा लग रहा था दिमाग में तूफान की चकड़ पकड़ चल रही है। अब्बा! जैसे ही जॉन पर झुकी उनके वजूद की जुम्बिश से जॉन जैसे जान में जान आई। वो ठीक थे, लेकिन अफसरदगी से आंखों की पुतलियां छत पर जमाए हुए थे। हैरत से वो कमरे में मौजूद बाकी नफूस की तरफ पलटी।
क्या हुआ? जूही ने नासमझी में बारी बारी सबके चेहरे पर निगाह दौड़ाते हुए सवाल किया। गालिबन सवाल इस वक्त मौजूद तमाम नफूस से ही था। अम्मा क्या हुआ है, क्यों रह रही है? चंद कदम आगे बढ़ते हुए मरियम की तरफ तशवीश से देखते हुए इस्तफसार किया। मरियम तो जैसे अपने हवासों में ही नहीं थी। उसकी सिसकियां और बैन पूरे कमरे में गूंज रहा था। सनाना, कोई तो बताएगा मुझे, पागल हूँ जो अकेले अकेले बंदे से पूछे पूछे जा रही हूँ। जूही ने झुंझलाकर रोती सनाना को अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें और पलकें भीगी हुई थी। जूत को पुलिस पकड़ के ले गई है, रुंधा लहजा था। क्यों, कैसे? सनाना के जवाब पर उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। पेशानी पर तजस्सुस की जगह अब परेशानी की लकीरें थीं। चोरी की है दोस्तों के साथ मिलकर। सनाना की आवाज़ बमुश्किल हलक से बरामद हुई थी। जूही अपनी जगह साकिन रह गई। खबर ही ऐसी थी। अच्छा, तो ये वजह थी। वो आजकल रात गए तक घर से बाहर आने लगा था। वो घर की जिम्मेदारियां संभालने में इतनी मगन थी कि कभी उसकी खैर खबर ली ही नहीं। पता नहीं कब वो बुरी सोबत का शिकार हुआ और आज खामोशी कुछ लम्हे के लिए यूं ही निकल गई। अम्मा परेशान न हो, मैं कुछ करती हूँ। आमिना का ख्याल आते ही जैसे उम्मीद की किरण नजर आई। उसका भाई पुलिस में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था। क्या करोगी, मामला इतना आसान नहीं है जो तुम कुछ कर सकोगी। वो घूमकर अब मोबाइल के सिग्नल पूरे कर रही थी जब सनाना की कब से आती आवाज़ पर उसके नंबर मिलाते हाथ वहीं थम गए। क्या मतलब? वजूद एकदम घूम गया। पेशानी पर तेवरी चढ़ाए सवाल किया। सनाना ने लम्हे भर को निगाहें चुराई। दोस्तों के साथ मिलकर जिस घर में चोरी की है उनका बेटा गोली लगने से मर गया है। सनाना ने घुटी सी आवाज़ में जैसे धमाका किया था। हाथ में पकड़ा मोबाइल एक लम्हे को काँप गया। क्या कह रही हो? काँपती आवाज़ में भी यकीनी थी और खौफ था। हाँ, सही कह रही हूँ, ऐसा ही है। सनाना के जवाब पर दिल बैठ गया। बैठे दिल और काँपते हाथों से वो फिर भी आमने का नंबर मिला चुकी थी। देखा, ये सब क्या से क्या हो गया? हार्वी ने हाथ में पकड़ाई टीवी रिमोट पूरी कुव्वत से दीवार में मारा। पास बैठे ब्रूस ने रिमोट के धमाके के संग आंखें जोर से बंद की। रिमोट दो टुकड़े होकर अब जमीन बोझ था। टीवी स्क्रीन पर बार बार दुरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ मनाजिर दिखाए जा रहे थे। टीवी स्क्रीन के सामने लगे सोफों पर हार्वी और ब्रूस हैरत कदा बैठे थे। शीशे की मेज पर सजे गिलासों के पेंडों में अब भी मैं मौजूद थी। हार्वी के गुस्से ने ब्रूस के चेहरे पर खपत के आसार बढ़ा दिए। एक झटके से उसने सामने पड़े गिलास को उठाया और गिलास में मौजूद मैं जहर की तरह खलक ले ली। मुझे क्या पता था ये सब होगा? निदामत भरा लहजा था। वो अब लब भीजे हुए था। निगाहें सामने टीवी स्क्रीन पर झी जमी थी। फिल्म की शूटिंग के चीन में होने वाले तमाम मनाजिर तो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अब बाकी शूटिंग अमेरिका में थी। लेकिन मुझे पता था ये सब होगा। दुरांग बहुत ज़हीन और चालाक है, ये तो मैं बार बार कहता रहा हूँ। तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब भुगतना सबको पड़ेगा। मानता हूँ मुझसे बड़ी गलती हुई है। शिवन के मामले में अलग फंसे हैं, लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा कि ये लड़की क्या वाकई उसे जानती थी पहले, या दुरांग ने अब ये सारी कहानी गढ़ी है। ब्रूस ने थोड़ी सहलाते हुए आंखें छुंदिया की। जानती थी या नहीं जानती थी, पर ये लड़की तुम्हें ज़रूर पहचानती है कि तुमने उसे दुरांग के पास भेजा था। हार्वी ने दांत पीसे। बात करो शिवन से, वो किसी सूरत उसको यहाँ से निकलने ना दे। क्या कर रहा है वो? कहाँ है उसकी पावर? दुरांग दंदनाता फिर रहा है। शिवन कुछ नहीं कर सकता। पुलिस बहुत अलर्ट है आजकल और हर जगह छापे मार रही है। वो अंडरग्राउंड हो गया है। हार्वी का लहजा तल्ख था। तो फिर अब ये कि वो निकल जाएगा अमेरिका के लिए। देखा नहीं कैसे सिक्योरिटी मांग ली है उसने। हाथ का इशारा फिर से स्क्रीन की तरफ किया जहां दुरान माइक थामे हुए कुछ बोल रहा था। हार्वी एक झटके से सोफे पर से उठा और कमर पर हाथ धरे परेशान लहजे में बताया, अब हमें दुरांग को ये शो करवाना है कि हम इस सारे मामले से अनजान हैं। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उसे कॉल करो और कहो कि फिल्म की शूटिंग के लिए कब से आ रहा है। हार्वी ने गहरी सांस लेते हुए ब्रूस को अपने अगले लाहिला अमल के बारे में हिदायत दी। ब्रूस ने कुछ बोलने के लिए हाथ उठाए, लब खोले। चुप, अब कुछ भी तुम्हारे मशवरे पर नहीं होगा, सब मेरे मशवरे पर होगा। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे। ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। हार्वी के घूरने पर वो लब भीजे सर हिला गया। गहरी सांस ली और बोतल को उठाए अब आतिशे फिर से गिलास में उंडेल दिया। चढ़ती शाम की शरबती ठंडी शुआएं बरेलवी हिल्स की खूबसूरती को दोबाला किए हुए थी। मसाफात में सब्ज घास में लपेटे छोटे बड़े पहाड़ और कांच जैसे खूबसूरत घर। वो गाड़ी की खिड़की के शीशे से पार मुतवातर बाहर के नज़ारों को देख रही थी। शब्द ढीली सी शर्ट के नीचे हल्के मस्टर्ड रंग की पैरों को छूती से स्कर्ट जेब किए बाल जो अभी तक सीधे थे, कंधों से नीचे दाएं बाएं बाजुओं को चूम रहे थे। गंदमी जर्द होते गालों वाला चेहरा हर तरह के मेकअप से आरी था।
سیاہ آنکھوں کی سفید پتلیاں شفاف تھیں اور پتلیوں کے مرکز میں گزرتے ہر منظر کا عکس ابھر رہا تھا۔ امریکہ کی ٹھنڈک گرم کار میں بھی اس کے ناک کو ہلکا سا گلال کیے ہوئے تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر دھرے وہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر دوران کے برابر میں بیٹھی تھی۔ دوران مہندی رنگ لیدر جیکٹ کے نیچے گول گلے والی گرے شرٹ پہنے ہلکے سے بکھرے بالوں سمیت سر جھکائے موبائل اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ دھیرے سے لبوں کے نیچے تھوڑی کو پرسوز انداز میں سہلا رہا تھا۔ وہ لوگ چائنا سے بحفاظت امریکہ پہنچ گئے تھے لیکن اب یہاں اس کو درانگ ولاس کی سیکیورٹی جوئی کے مطابق سیٹ کرنی تھی۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اب سست روی سے درانگ ولاس کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انل اب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ فلائٹ سے اترتا ہی اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جوئی کی آنکھیں پوری اوپر اٹھی تھی جن میں اب درانگ ولاس کا عکس چمک رہا تھا۔ یہ گھر نہیں، خوابوں کا محل تھا جو اس وقت اسے اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ گارڈز گاڑی کے دونوں اطراف کے دروازے کو کھول رہے تھے۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولے گارڈ اس کے نکلنے کا منتظر تھا جبکہ متوحش بیٹھی تھی۔ اس کے یوں منجمد ہو جانے میں حیرت، جھجک، بے یقینی سب شامل تھا۔ جوئی باہر کیوں نہیں نکل رہی آپ؟ دران نے ہلکا سا جھک کر گاڑی میں جھانکا، بھویں اوپر اٹھائے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ جوئی خفت سے سسپٹائی، پھر آہستگی سے گاڑی کے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلی۔ ویلکم ہوم سر۔ کتنے ہی ملازمین ایک مخصوص وردی میں ملبوس ہاتھ باندھے ایک قطار میں کھڑے تھے اور دران کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے ویلکم کر رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دران کے پیچھے چل رہی تھی، سر حد درجہ جھکائے عجیب سے احساس سے دوچار تھی۔ پورچ کے آگے مین دروازے میں داخل ہوتے ہی راہداری میں دائیں اور بائیں لگی پینٹنگز کو نگاہ اٹھائے دیکھتی تو دران کے پیچھے اب لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ ویلکم ہوم، ملک اسونت کی آواز تھی۔ دران نے چونک کر موبائل پر سے نگاہ اٹھائی۔ لاؤنج میں اسونت ملک صوفے کے پاس کھڑے تھے جبکہ روبی آنکھوں کی پتلیوں کو سکیڑے دران کے پیچھے کھڑی جوئی کو دیکھ رہی تھی۔ اسونت ملک آگے ہو کر بڑے پرجوش انداز میں دران سے بغل گر ہوئے۔ کیسے ہیں آپ؟ ان کی گرم جوشی کے بالکل برعکس پھیکا سا لہجہ تھا، بے تاثر چہرہ۔ اسونت ملک اسے کندھوں سے تھامے ہوئے پیچھے ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ ان اکھیوں سے جوئی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لہجہ اب بھی خوشگوار تھا۔ دران کی مسلسل توجہ موبائل کی طرف مبذول تھی۔ ویلکم ہوم سر۔ روزین پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ دران نے روزین کے آتے ہی موبائل پر سے توجہ ختم کی، سر اوپر اٹھایا، موبائل کو جیب میں رکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارہ جوئی کی طرف کیا۔ میم کو ان کے کمرے میں لے کے جائیں، بڑے متوازن لہجے میں حکم صادر کیا۔ وہ بنا جوئی کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ میم کم۔ روزین نے محبت بھری مسکان کے ساتھ میٹھے لہجے میں اسے اپنے سنگ چلنے کا کہا جو دران کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ روزین کے پکارنے پر وہ ہلکا سا چونکی، پھر اس کی تقلید میں قدم آگے بڑھائے۔ رکو لڑکی۔ روبی کی تیکھی آواز میں تلخی کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جوئی کے بڑھتے قدم تھمے، ساتھ ہی روبی کی طرف نگاہ اٹھی۔ وہ صوفے کے دونوں بازو پر وزن ڈالتے ہوئے بڑے انداز میں اٹھی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے ڈھیلے سے گھٹنے تک آتے کرتے کے نیچے وہ جینس پہنے ہوئی تھی۔ میک اپ سے ہٹا مغرور چہرہ، ہلکے سنہری رنگ زدہ بال، دودھ جیسی چمکتی رنگت، وہ جدید طرز کے ہر فیشن سے لیس خوبصورت عورت تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تیکھی سی نگاہوں سے گھورتی وہ جوئی کا مکمل جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ انداز میں حقارت جیسا احساس بھی تھا۔ جوئی، آہستگی سے جواب دیا۔ ملک اسونت ہنوز وہیں کھڑے تھے۔ ہاں، پوری توجہ اب جوئی اور روبی کی طرف تھی۔ یہ کیسا نام ہوا؟ عجیب سا، خیر تم سے بہت میچ کرتا ہے۔ پاکستان سے ہو؟ کھرانٹ لہجہ اور چہرے کا کھچاؤ اس کی نفرت کا گھماس تھا۔ اس کی چپٹی نگاہیں جوئی کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ کراچی، گھٹن سی آواز میں مختصر جواب دیا۔ روزین جو ہاتھ تھام باندھے کھڑی تھی، چور سی نگاہ اٹھائے روبی کے انداز کو جانچ رہی تھی۔ اردو سمجھنے سے تو قاصر تھی، ہاں البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جوئی کو پریشان کر رہی ہے۔ جوئی کے جواب پر روبی کا چہرہ پرسوز ہنکار ابھرا۔ میم سوری ٹو سے، دران سر نے ان کو روم میں لے جانے کا کہا ہے، اس کے بعد مجھے ڈنر سرو کروانا ہے، کائنڈلی آپ لنچ پر بات چیت کر لیجیے گا۔ روزین جوئی کی ہچکچاہٹ اور روبی کی تلخی بخوبی سمجھ چکی تھی۔ بڑے تحمل مزاج انداز میں اس نے روبی سے اس کی جان چھڑوائی۔ روبی بدمزاج سی صورت کے ساتھ لیفٹ بھیجے سر ہلا کر رہ گئی۔ میم چلیے پلیز، اوپر ہے آپ کا کمرہ، روزین نے مسکراتے ہوئے اسے چلنے کا کہا۔ روبی کی چپٹی نگاہوں سے گڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے روزین کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج کے وسط سے چڑھتے زینے کے پاس لگی لفٹ کے پاس جا کر روزین رکی اور پھر مسکراتے ہوئے مڑی۔ میم چلیے۔ شیشے کی دیواروں والی لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد روزین نے لفٹ میں قدم رکھے اور لفٹ نرم روی سے اوپر چڑھنے لگی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں لفٹ رکی تھی اور دروازہ نرماہٹ سے دوبارہ کھل گیا۔
शीशे की तरह चमकता सफेद फर्श और लाउंज से आगे छोटी सी राहदारी में कमरों के गहरे भूरे रंग के दरवाजे थे। रूबी अब एक दरवाजे के आगे रुककर उसके हत्थे पर हाथ रखे उसके वहां तक पहुंचने की मुंतजिर थी। जूही के पहुंचते ही उसने मुस्कुराते हुए दरवाजे को खोला। सफेद और हल्के मैरून रंग के इम्तिजाज लिए कमरा रिनोवेशन करने वाले के आला ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा था। मैम, सर के कहने के मुताबिक कमरे में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रूम इंटरकॉम की यूज़ कर सकती हैं। ये मेरे ऑफिस से मुल्हका है। रोजीन हाथ बांधे बड़े मुअद्दब लहजे में उसे तमाम मालूमात दे रही थी। जूही ने हंसती से मुस्कुराते हुए सर को इस बात में जुम्बिश देने पर इत्तेफाक किया। मैम, कुछ देर में डिनर रेडी हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाइए। रोजीन ने मुड़ते हुए रुक कर उसे फिर से लंच के बारे में आगाह करने के बाद अब बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। जूही ने तहरीर ज़दा आंखों को कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ाया। सफ़ेद चादर, मैरून कुशन वाला वसी गदाज बेड, एक दीवार में नस्ब शीशे की खिड़की और दूसरे दीवार में शायद स्लाइडिंग डोर बालकनी का था। बेख्तियार कदम बालकनी की तरफ बढ़े थे। शीशे के बने स्लाइडिंग दरवाजे पर हाथ रखे नरमाहट से उसने दरवाजे को बाहर तरफ सरकाया। यकबख्ता हवा के झोंके ने उसे ऐसा खैर मुकद्दम किया कि कंधों से आगे बाल पीछे के रुख उड़ने लगे। बालकनी दिलकश कमरे का हसीन हिस्सा साबित हुई थी और सामने का नज़ारा देखकर वो ठिठक गई। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले का हसीन टेरिस है। एक तरफ झूला लटक रहा है और एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं। मार्बल का कांच जैसा सफ़ेद फर्श है और सामने ये गंदा सा मैदान नहीं, एक समंदर है और नीचे ये मैली कुचेली पान की दुकानें नहीं हैं, बल्कि स्विमिंग पूल है। अपने ही कहे हुए अल्फाज जहन में गूंज रहे थे और वो साकिन इस हसीन मंजर को तक रही थी जो उसके ख्वाब की हकीकत था। अचानक नीचे मौजूद स्विमिंग पूल से आती छपक की आवाज़ पर चौंक कर निगाह झुकाई। दुरान नीले शफाफ पानी में तैराकी कर रहा था। उफ, इतनी ठंड में! हैरत से मुंह खुल गया। स्विमिंग पूल के नीले शफाफ तालाब के कोनों से ठंडी भाप उड़ाते पानी में वो बड़ी महारत से तैराकी करने में मसरूफ था। पूल के करीब वर्दी में मलबूस मुलाजिम हाथ में सफ़ेद रंग का टॉवेल गाउन थामे सर झुकाए खड़ा था। पूल के पास सफ़ेद रंग के बंच लगे हुए थे। वो यूं ही टिकटिकी बांधे उसे शफाफ पानी में उल्टा तैरते हुए देख रही थी। जब वो बाजू पानी में चप्पू की तरह चलाता अचानक सीधा हुआ। दुरान की नज़र यकलक टेरिस के रैकिंग थामे खड़ी जूही पर पड़ी। एक सेकंड के 12वें हिस्से में वो सटपटाकर पीछे हुई। उफ उफ, उसने देख लिया क्या? दिल तेजी से हिचकोले खाने लगा। खिफत के मारे तेज तेज कदम उठाती कमरे में आई और स्लाइडिंग दरवाज़ा सरकाकर फौरन बंद किया। कमरे की हिद्दत ने जिस्म को राहत बख्शी। मैं क्यों यूं ही महसूस कर रही हूँ कि मैं उसके एहसान तले दबी हूँ? वो भी तो मुझे अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ही कर रहा है। जहन दिल की खिफत को कम कर रहा था। छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से मुल्हका ड्रेसिंग रूम तक आई, जहाँ वॉशरूम से दरवाजे के सामने पूरी दीवार में सफ़ेद चमकते दरवाजे वाली अलमारी नजर थी। आस्तीकी से अलमारी के दरवाजे को सरकाया तो आंखें और कदम एक साथ थम गए। ये अलमारी नहीं, अलमारी नुमा पूरा कमरा था। कमरे में एक कतार में लगे हैंगिंग स्टैंड पर अनगिनत बेशकीमत जोड़े लटक रहे थे। जूते के रैंक्स में चंद जूते बड़े सलीके से रखे गए थे। लम्हा भर के लिए ऐसा लगा वो किसी दुकान में खड़ी है। अचानक जहन में वो लम्हा गूंज गया जब दुरान ने चीन में शॉपिंग के दौरान उसके जूते और कपड़े का साइज पूछकर किसी को बताया था। यूं ही शरासमीगी की हालत में कदम उठाती कपड़ों के हैंगिंग स्टैंड के करीब आई। कीमती जदीद तर्ज के पैंट, शर्ट, जैकेट्स, स्कर्ट, गर्म कोट जिनके गिरबान पर लगे टैग तक नहीं उतारे गए थे, वो हाथों की मदद से उनको एक तरफ सरकाते हुए देख रही थी। कपड़ों के हैंगर के सरकने की आवाज़ के साथ किसी फ़ोन रिंग टून जैसी आवाज़ थी जो कमरे से भरी तो वो चौंकी। ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो बेड के अतराफ में लगे मेज़ पर पड़ा इंटरकॉम बज रहा था। हल्की सी झिझक के साथ रिसर उठाकर कान को लगाया। हेलो मैम, आप रेडी हैं? दुरान सर ने कहा है डिनर आपको आपके कमरे में पेश कर दिया जाए। रोजिन की आवाज़ फ़ोन बूथ से उभरी। मैं फ़्रेश होने के बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ। इंटरकॉम का रिसीवर रखने के बाद तजज्जुब की हालत में वो दोबारा ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। फिर लॉन्ग ग्रे रंग की टी शर्ट और स्याह पैंट का इंतखाब करने के बाद वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। तेज़ बारिश, बिजली की गरज चमक पूरे कराची को अपनी लपेट में लिए हुए थी। आंसू बरसाते आसमान वाली ये गहरी शाम मलिक हाउस पर गम का पहाड़ तोड़े हुए थी। लाउंज से उठती चीखों पुकार दिल दहलाने वाली थी। एक साथ कितने ही दिल थे जो फटने की हद को पहुंचे आह बका कर रहे थे, बैन कर रहे थे, तड़प रहे थे। लाउंज के वस्त में यावर कफन में लिपटा उन सबकी चीखों पुकार से बेबहरा पुरसुकून पुरनूर सफ़ेद चेहरे के साथ आंखें मूंदे लेटा था।
सोनिया और दुख से निढाल होती सबरीना पलंग की पायती थामे धाड़े मार मार रही थी। दस्तगीर बेगम ढाल थी, उनका सख्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो यकटक जर्द साकिन छुरी ज़दा आंखें गैर मरी नुक्ते पे जमाए बैठी थी। तलत और असमत के ऊंचे ऊंचे बहन दीवारों से टकराकर दम तोड़ रहे थे। इन सब में वो मौजूद नहीं था जो यावर की आखिरी चलती सांसों के वक्त तक उसके साथ था। गम में चूर मलिक हाउस में किसी को क्या खबर, वो तो दूर लायंस एरिया के सामने मौजूद पार्क में बेंच पर सर झुकाए बेआवाज़ आंसू बहा रहा था। वो जिंदगी में पहली मर्तबा रो रहा था। आंखों से निकलता नमकीन स्याह तेज बारिश में एक पल के लिए भी चेहरे पर नहीं ठहर रहा था। तेज बारिश के थपेड़े मुतवातर उस पर बरस रहे थे, मगर जहन में यावर मलिक की कही हुई आखिरी बातों के जकड़ चल रहे थे। वो पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा जहन में वो आखिरी मंजर हजरवा हजारों बार दोहरा चुका था। वो इस लम्हे को थाम लेना चाहता था, उसे पलट देना चाहता था। कितना बेबस था वो उस वक्त, कुछ भी नहीं कर सका। और उसका दिल हर अजीज बाप जैसा चचा उसके हाथों में जान दे गया। सफ़ेद चादर में लिपटे बिस्तर मर्ग पर लेटे यावर मलिक ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा था। अनगिनत नालियों में जकड़ा नातवा चेहरा, आंखों के गिर्द गहरे हल्के। वो तो 1 महीने में बरसों के बीमार लग रहा था। दिल के एक झटके ने निचोड़ कर रख दिया था। 19 साला दुर्रान उसके बेड के करीब खड़ा मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रहा था। दुर्रान, वो मुझे लग रहा है अब ज़्यादा देर नहीं रहूँगा यहाँ, मेरा वक्त बहुत करीब है। नकाह से कहते हुए निगाहें दुरान के चेहरे पे टिकाए हुए था। आंखों की पितलियों में चमक नहीं थी। चाचू, ऐसी बातें मत करे, कुछ नहीं होगा आपको। दुरान की बात पर यावर के पुस्मुर्दा चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली। पीला हट ज़दा गाल जो अब हड्डियों का ढांचा बन गए थे, मुस्कुराहट के सबब ऊपर को उठे। ये मुस्कुराहट, 1 महीने पहले तक ये जानदार मुस्कुराहट उसके सुर्ख चेहरे के पट्टे खींचती थी तो खूबसूरत चमकती आंखें और चमकने लगती थी। दुर्रान, मैं जाते हुए तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सच जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर मैंने तुम्हें ये ना बताया तो बहुत ज़्यादती कर जाऊँगा तुम्हारे साथ, साजियाबाजी के साथ। वो एक पल के लिए निगाहें झुका गया। दुरान उसके हाथ की कपकहाट अपने हाथ पर बाखूबी महसूस कर रहा था। बोलने के बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। चाचू, बाद में बता दीजिएगा, अभी मत बोले, डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा बोलने से। दुर्रान ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए मोहब्बत से मना किया, जबकि जहन उनकी किसी अनहोनी सोच पर ठिठक गया था। वो कोई बहुत ही गहरा राज बताने जा रहे थे, ऐसा राज जो उसकी काया पलट करने वाला था। नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है और ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। दुर्रान, तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो। वो नज़रें चुराकर कांपते लहजे में उस पर यह हैरानकुन इंकशाफ कर गए जिसके लिए वो जहन को तैयार कर ही रहा था। दुर्रान ने हैरत से भौं इकट्ठी की, चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। ऐसा इंकशाफ? तुम्हारी माँ एक अमेरिकन यहूदी थी, लेकिन वो नवीन भाई की बीवी नहीं थी। मतलब तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो, तुम्हारा बाप कोई और है। यावर ने निगाहें उठाई जिनमें शर्मिंदगी की गहरी छाप थी। सांस के उखड़ने में इजाफा हो चुका था, मगर दुर्रान अब मुतवज्ज खड़ा था। फिर मैं किसका बेटा हूँ? हैरत में डूबी दूर कुएं से आती आवाज़। वो हुनूस भवें से कड़े हैरतज़दा खड़ा था। पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तुम नवीन भाई के बेटे नहीं हो। तुम्हें यहाँ सिर्फ नवीन भाई का बेटा बनाकर लाया गया है। यावर मलिक ने निगाहों का जाविया फिर से बदला। सांस का उखड़ना अब हल्की सी खांसी में बदलने लगा। तुम्हारा असल बाप कौन है ये सिर्फ असली भाई जानते हैं। मुझे ये हकीकत बहुत देर से पता चली, और इससे पहले कि मैं कुछ करता या उनका गिरबान पकड़ता, ज़िंदगी ने मेरी मियाद कम कर दी। खांसी के बाद यावर की आवाज़ उखड़ने लगी। हल्की हल्की खांसी अब शिद्दत इख्तियार करने लगी। पुतलियों में पानी चमकने लगा। दुरान तो ऐसे खड़ा था मानो काटो तो लहू नहीं। देखो, असली भाई ना सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि मेरे बाप जैसे हैं। नहीं जानता उन्होंने ये गुनाह क्यों किया, लेकिन तुम्हें सच बताना मेरा फ़र्ज़ था। खांसी अब बहुत ज़्यादा और तेज़ हो चुकी थी। हर लफ्ज़ के बाद बेतहाशा खांसते हुए यावर ने बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। चाचू, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। दुरान ने आवाज़ बाक था उनसे अपना हाथ छुड़वाया था और दरवाजे की तरफ तकरीबन भागा था। बारिश के थपेड़ उसकी पीठ पर और गालों पर लगातार पड़ रहे थे। यावर की मौत उससे मोहब्बत करने वाले एक रिश्ते के साथ दूसरे रिश्ते को भी निगल गई। आज तक वो यावर के बाद असद मलिक को दिल में एक मुकाम देता था। यावर ने जाते जाते असद मलिक के उस मुकाम को भी ख़त्म कर दिया। वो मलिक ख़ानदान का खून नहीं था, वो नवीन मलिक का बेटा नहीं था। फिर वो कौन था? असद मलिक उसे सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए लाए थे। आखिर क्यों? यावर चाची को ये बात कब और कैसे पता चली?
वो आज एक इंसान से एक मोहरा बन गया था जिसे उसकी माँ ने शायद बेच दिया था, और असद मलिक जैसे शफाक इंसान ने उसे खरीदकर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। कल तक वो मलिक हाउस में कदम रखते हुए ये महसूस करता था कि वो उसका भी कुछ हक है इस घर पर, लेकिन आज पता चला उसका कोई हक नहीं है। वो तो कठपुतली था जिसकी डोर असद मलिक के हाथों में थी। वो नचा रहा था और वो नाच रहा था। धड़ाम से कोई आसमान से ज़मीन पर गिरा था। जी, तो आज के एपिसोड को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की किस्त अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।